Hello students, welcome to you all in the second part of the third chapter, The Selfish Giant. In previous video we read that how the selfish giant expelled the children from his garden. और किस तरीके से बच्चों के जाने के बाद स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हिल्स इन सभी ने सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और ना ही स्प्रिंग सीज़न आया सेल्फिश जाइंट के गार्डन में और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और किस तरीके से एक दिन अचानक से उसके वहाँ एक लिनेट, एक चिड़िया आती है जिसकी आवाज़ सुन के वो अचानक से उठ खड़ा होता है और खिड़की के बाहर झांकता है। वह एकदम से बहुत खुश हो जाता है और एक पल के लिए सोच में डूब जाता है कि अचानक से ये इतनी अच्छी आवाज़ उसे फिर से कैसे आई, और दोबारा खिड़की की ओर बाहर आके देखता है। He saw a most wonderful sight. उसने बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा। Through a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. And the tree were so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. "Climb up, little boy," said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. And the giant heart melted as he looked out. "How selfish I have been," he said. "Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever." He was really very sorry for what he had done. He saw a most wonderful sight. The selfish giant ने बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा। Through a little hole in the wall the children had crept in. दीवार में एक होल के रास्ते बच्चे उसके गार्डन में आ रहे थे। And they were sitting in the branches of the trees. और वो पेड़ों की टहनियों पे बैठ रहे थे। In every tree that he could see there was a little child. हर पेड़ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। And the trees were so glad to have the children's back again. और सारे के सारे पेड़ बहुत खुश हो गए थे सारे बच्चों को वापस देखकर। They had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. और पेड़ों ने अपनी टहनियों को खुशी से लहराना शुरू कर दिया। The birds were flying about and twittering with delight. पक्षियों ने उड़ना और चहचहाना शुरू कर दिया। And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और फूल भी उगना शुरू हो गए और खुश हो गए। It was a lovely scene. ये जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। Only in one corner it was still winter. लेकिन अभी भी जाइंट के गार्डन के एक कोने में विंटर था। It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुँच पा रहा था। And he was wandering all round it, crying bitterly. वो पेड़ के चारों ओर घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow. अभी भी उस पेड़ पे फ्रॉस्ट और स्नो से वो ढका हुआ था। And the north wind was blowing and roaring above it. "Climb up, little boy," said the tree. तभी पेड़ ने उस बच्चे से कहा कि ऊपर चढ़ो। And it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. पेड़ ने पूरी कोशिश की अपनी टहनियों को नीचे तक उस बच्चे तक झुकाने की, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out. और जैसे ही जाइंट ने देखा उस बच्चे की ओर, उसका दिल पिघल गया। "How selfish I have been," he said. वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। "Now I know why the spring would not come here." अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया। "I will put that poor little boy on the top of the tree." मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। "And then I will knock down the wall." और उसके बाद मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। "And my garden shall be the children's playground forever and ever." और मेरा ये जो गार्डन है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा।
He was really very sorry for what he had done. उसे बड़ा दुख हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे गया और उसने फ्रंट डोर खोल दिया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. और जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वो सारे के सारे भाग गए. And the garden became winter again. और दोबारा से गार्डन में विंटर आ गया. Only the little boy did not run. लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं दौड़ पाया. For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossoms. उसने giant ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया. And the birds came, sang on it. और तभी वहाँ सारी की सारी चिड़ियाँ वापस आ गईं. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running towards the giant. सभी बच्चों को लगा कि giant अब सुधर गया है, अब वो wicked बुरा नहीं है. It is your garden, little children. जाइंट ने उन बच्चों से कहा कि अब ये गार्डन तुम्हारा है. एंड ही लुक अ ग्रेट एक्सी एंड नॉक डाउन द वॉल. और उसने कुल्हाड़ी ली और दीवार को तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और जब लोग उस जाइंट के गार्डन के वहाँ से गुजरा करते थे तो वो अक्सर 12 बजे के आसपास जाइंट को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते थे. और उन सभी लोगों ने कभी इतना सुंदर गार्डन नहीं देखा था. ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन दे प्लेड, वो बस खेलते ही रहते थे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय. और इवनिंग के टाइम पे वो जाइंट को गुड बाय बोल के चले जाया करते थे. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. उतने में जाइंट ने कहा कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ पे चढ़ाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. We don't know, answered the children. बच्चों ने कहा हमें नहीं पता. He has gone away. शायद वो चला गया है. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. Giant ने उन बच्चों से कहा कि उस बच्चे से कह देना कि कल वो ज़रूर आए. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. लेकिन जब बच्चों ने कहा कि वो कहाँ रहता है हमें नहीं पता, ऐसा सुन के ही वो giant बहुत दुखी हो गया. Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant. But the little boy whom the giant loved was never seen again. हर आफ्टरनून में वो बच्चे जाइंट के साथ खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन जाइंट जिस छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करता था उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. जो जाइंट है वो अक्सर सारे बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहता था, लेकिन उसे अभी भी लॉन्ग्ड फॉर मीन्स डिज़ायर, इच्छा रखना. उसे अभी भी अपने उस हिज लिटिल फ्रेंड जो छोटा बच्चा था उसकी क्या थी, होप थी कि वो उसके गार्डन में आएगा. और वो अक्सर कहा करता था कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, यूज टू, अक्सर कहा करता था कि मैं कैसे उससे दोबारा मिलूँगा. ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते चले गए. एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. अब जो जाइंट है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था. एंड फीबल मीन्स वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल सकता था. सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर में बैठ जाया करता था. एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन, और बच्चों को खेलते हुए देखा करता था. एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन को निहारा करता था. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं. ही सेड, ऐसा जाइंट ने कहा. बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सभी फूलों से ज़्यादा ये छोटे बच्चे हैं जो इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. एक दिन सुबह वो खिड़की से बाहर झांक रहा था और जाड़ों का मौसम था. He did not hate the winter now. अब वो विंटर से नहीं चिढ़ता था, विंटर सीजन से. For he knew that it was merely the spring sleep and that the flowers were resting. क्योंकि वो समझ गया था क्योंकि अब स्प्रिंग के जाने का और इन फूलों के आराम करने का समय है. Suddenly he rubbed his eyes in wonder. अचानक से हैरान होकर उसने अपनी आंखों को मसला. And looked और बार बार खिड़की की ओर, बाहर की ओर देखता रहा. It certainly was a marvelous sight. जो नज़ारा उसने देखा वो सच में बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही सुंदर सा था.
इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री। उस गार्डन के एक आखिरी कोने में एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जिसमें अभी भी सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी टहनियाँ सुनहरी थीं, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसमें से सिल्वर कलर के फ्रूट नीचे को लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के ठीक नीचे वह लड़का खड़ा था जिसका वो अक्सर इंतज़ार किया करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, खुशी के मारे वो जाइंट दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर गया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, वो घास के बीचों बीच से दौड़ते हुए उस बच्चे के नज़दीक पहुंचा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे के नज़दीक पहुंचा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उसने कहा, हु हैड डेयर टू वाउंड दी। दी मीन्स तुम्हें, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की है। फॉर ऑन द palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. उस बच्चे की हथेलियों पे और उसके पैरों पे 2 नाखूनों के निशान थे। Who hath dared to wound thee? दी मीन्स तुम्हें, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई, ऐसा जाइंट ने कहा। Tell me that I may take my big sword and slay him. जल्दी बताओ मैं अपनी बड़ी सी तलवार से, sword मीन्स तलवार, slay मीन्स किसी का खून करना, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार दूंगा। No, answered the child. बच्चे ने कहा नहीं, but these are the wounds of love. ये जो निशान तुम मेरे शरीर पे देख रहे हो ये प्यार के निशान हैं। Who are do? said the giant. उतने में जाइंट कहता है कैसे। And a strange awe fell on him. And he, और बच्चे की ऐसी बात सुन के अचानक से वो किसी ख्यालों में खो जाता है। And he knelt before the little child, और उस बच्चे के सामने गिर जाता है। And the child smiled on the giant. और वो बच्चा जाइंट की ओर हंसते हुए देखता है और कहता है कि लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ आओगे। टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कहाँ है, पैराडाइज है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। And when the child ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब उस आफ्टरनून बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो जाइंट है लाइंग डेड अंडर द ट्री, वो उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और वाइट फूल यानी सफ़ेद फूल उसके ऊपर गिरे हुए हैं, सफ़ेद फूलों से वो पूरा ढका हुआ है। और इस तरीके से जाइंट की डेथ हो जाती है। So students, here's your this story is completed and you have to write down the Hindi meaning of the difficult words from the help of this video in your notebook. Thanks for watching.